Assalamu alaikum students. Hope you are doing well at home. Today we are going to start chapter number 2 of your biology book from Syntax Book Board. The chapter is about structural organization of life. Uh, the cell is the basic unit of life. It is the smallest entity in which the life can exist. All the things that living organisms can do are done by its cells. In fact, some living things are made up of only one cell. Each cell gets food for energy, obtains oxygen, produces energy, gets rid of waste, maintains homeostasis, and produces new cells. In early classes, we have studied that all living organisms are composed of cells. The question arises here, how did biologists come to know that? Obviously, through observations. These observations started with the discovery of magnifying glasses and later on with the development of microscope. सो जब माइक्रोस्कोप स्टार्ट हुई डेवलप हुई तो उसके बाद ही ये जो है मुमकिन बना कि साइंसदानों ने जो है वो सेल को डिस्कवर किया. It is discovered by a scientist named रॉबर्ट ब्राउन. हम आगे डिस्कस करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या है. Cells are of different shapes and size according to their functions. In spite of variations found in their shape, all cells basically share many structures in common, like cell membrane, cytoplasm, nucleus, etc. In plant cells, cell membrane is surrounded by a cell wall. सेल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. द मेन 2 टाइप्स के होते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल से. जो सबसे बड़ा डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल में कि प्लांट सेल में जो है वो सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल में ओनली सेल मेम्ब्रेन होती है. देयर इज़ नो सेल वॉल इन एनिमल सेल. Microscopic studies reveal that all living organisms are composed of cells. Therefore, cell is a unit of structure of living organisms. These are of shapes and size. They have performed to different functions. All basic functional activities, characteristics of living things occurs in the cell. Therefore, cell is also a unit of function of all living organisms. एक basic unit है हमारी life का, हमारी कंपोजिशन का. सारे हमारे जो है जो फंक्शंस हैं वो सेल में परफॉर्म होते हैं और हमारी बॉडी जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की जो है वो बनी हुई है. तो सेल जो है वो हमारी ज़िंदगी की जो है वो बुनियाद कहलाता है. Now we are going to discuss the organelles of cells. The first main organ which is found in plant cell is cell wall. It is non-living outermost boundary of the plant cells, bacterial cells and fungal cells. It is not found in animal cell. It is composed of 3 main layers. एक middle layer होती है, लैमेला जिसे कहा जाता है, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड सम टाइम टाइटरी वॉल. उसका फंक्शन क्या है सेल वॉल का? सेल वॉल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द सेल. It gives a definite shape to the cell. It also performs the functions of transport of the materials. एक शेप देती है बेसिक जो है वो सेल को. इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन होती है मटेरियल्स की कि वो सेल में एंटर होते हैं या सेल से वेस्ट मटेरियल्स बाहर निकलते हैं, उसमें जो है वो मदद देती है. द सेकेंड वन ऑर्गेनल इज़ सेल मेम्ब्रेन विच इज़ फाउंड इन बोथ सेल्स, एनिमल एंड प्लांट सेल. The cell membrane or plasma membrane surrounds nucleus and cytoplasm in all types of cells. It is selectively permeable membrane because it regulates selective movement of molecules. ये एक जज्ब करने वाली जिस तरह झल्ली होती है ना, इस तरह जो है वो एक लेयर टाइप की होती है और ये जो रेगुलेट करती है जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है.
The third one in the major organelle of the cell is nucleus. It is discovered by Robert Brown in 1831. It is an important prominent structure present inside the cell. Nucleus का क्या काम है? It controls all the activities of the cell. कि सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी सारी मूवमेंट्स होती हैं मटेरियल्स की, इन सब को जो है वो न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल करता है. ये इसका जो है वो बेसिक फंक्शन है. उसके बाद एक और पार्ट है सेल का, जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है. इट इज़ द ट्रांसल्यूसेंट फ्लूइड पोर्शन ऑफ द सेल lying in the between plasma membrane and nucleus. It consists of an aqueous ground substance called cytosol and granular portion called cytoplasmic organelles. दो ये जो है वो पूरे जो है वो सेल में, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो पूरे सेल में फैला होता है. ये एक शफाफ धुंधला सा फ्लूइड लाइक पोर्शन है जो कि मुश्तमिल होता है कुछ पानी, और उसमें जो है वो एक दानेदार सब्सटेंस होते हैं. ये मिलके जो है वो साइटोप्लाज्म बनाते हैं. केमिकली साइटोप्लाज्म इज़ अबाउट 90% वाटर एंड फॉर्म्स अ सॉल्यूशन एंड सर्व्स एज अ स्टोर हाउस ऑफ वाइटल केमिकल्स. इसके जो है वो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, जो कि हैं लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स से, सेंट्रियोल्स से, राइबोसोम से एंड वैक्यूल्स. Now we are going to discuss the organelles which are found in cytoplasm. The first one is endoplasmic reticulum. Endo means inside, plasma means protoplasm, and reticulum means network. It means inside protoplasm network. It is a network of membranous channel or tubules extending throughout the cytoplasm. Tubes होती हैं पूरे साइटोप्लाज्म में होती हैं, ठीक है. एंड it provides mechanical support to the cell. It detoxifies the harmful effect of the drugs. जो जहरीले होते हैं उनको जो है वो ये डिटॉक्सीफाई करती है. उसके बाद नंबर सेकंड ऑर्गेनल है गोल्गी कॉम्प्लेक्स. दे आर डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी एंड दिस कॉल्ड गोल्गी कॉम्प्लेक्स और बॉडीज और apparatus. They are smooth membranes that are stacked into flattened fluid-filled sacs or vesicles containing carbohydrates, glycoproteins and enzymes. Vessels होती हैं एक टाइप की जो कि है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं. They are mainly concerned with the cell secretion. जो है वो एक जो सेक्रेशन जो है वो प्रोड्यूस होता है जिसमें जो है वो डिस्चार्ज ऑफ सब्सटेंस, उसमें जो है ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो मदद करते हैं. द मेन पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड सेल इज़ माइटोकॉन्ड्रिया. They are generally rod-like or bean-shaped organelles consisting of double membrane. इनका जो है वो मेन फंक्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन एंजाइम्स विच ब्रेक द फूड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. एज प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल. क्या करते हैं माइटोकॉन्ड्रियास में? एंजाइम्स होते हैं जो कि जो भी फूड मिल रहा होता है सेल को, उसको जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेक डाउन करके जो है वो उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का जो है वो पावर हाउस भी कहा जाता है. The other part of cytoplasm is plastids. Plastids are only found in the cells of all the higher plants. These are the organelles which contain different types of pigments. Plastids are of three types on the basis of their pigment of color. Plastids जो होते हैं वो मोस्टली प्लांट्स में पाए जाते हैं और ये डिफरेंट टाइप की पिगमेंट्स होती हैं. उसमें एक तो है क्लोरोप्लास्ट जिसके पास जो है वो ग्रीन पिगमेंट होती है. क्लोरोफिल फाउंड इन लीव्स एंड अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट. दे मैन्युफैक्चर कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. आपको पता है क्लोरोफिल पाया जाता है वो बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है और उसके जो मौजूदगी में जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो होता है.
The other one type of plastid is chromoplast, have colored pigments other than green. Green pigment नहीं होती लेकिन other colors होते हैं जो fruit में, flower में, petals और other colored parts of the plants में पाए जाते हैं. And the third one is leucoplast. इसका मतलब है colorless. It is found in the cells of the underground parts of the plants. They store food in the form of starch. ये प्लांट्स का जो अंडरग्राउंड हिस्सा है वहाँ पाए जाते हैं और ये स्टार्च के फॉर्म में जो है वो फूड स्टोर करते हैं. The next part of cytoplasm is centrosome or centrioles, rounded structures that are found near the nucleus in the animal cells. It helps in movement of chromosomes towards the poles during animal cell division. अब ये जो है वो सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, ये हेल्प करते हैं क्रोमोसोम जब मूव करते हैं. जब सेल डिवीजन को हम आगे पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, उसमें जो है वो क्रोमोसोम को मूव करने में हेल्प करते हैं. द अदर वन इज़ राइबोसोम. दे आर ग्रेन्यूल्स, दानेदार होते हैं, रिच इन राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA होता है इसमें. दे सर्व एज साइट्स वेयर प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज. अब यहाँ पर जो है वो प्रोटीन बनता है और इसलिए इसको कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल. दे आर फाउंड फ्री इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज अटैच्ड ऑन द surface of rough endoplasmic reticulum. And the last one part of cytoplasm is vacuole. They are fluid then cytoplasm filled sacs surrounded by membrane called tonoplast. In animal cell they are numerous, small but temporary structure, while the plant cell they are permanent and very large in size, one or a few in number. They are concerned with the storage of cell sap. वैक्यूल होते हैं जो कि प्लांट सेल में बहुत बड़े बड़े होते हैं और एनिमल सेल में जो है वो छोटे छोटे होते हैं. ये जो है वो सेल सेप मतलब कि शुगर, अमाइनो एसिड्स और जो है अदर सॉल्ट्स वगैरह जो हैं, जो मिनरल्स वगैरह जो हैं, वो सॉल्यूशंस जो है वो इनमें स्टोर होते हैं. सो दैट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड इट्स ऑर्गेनल्स. होप you learned much about cell. Thank you so much for listening. Stay home, stay blessed.